start the questions on page number 109 and 110 in your book. Now let's see first question. A bus is starting from rest, moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed required and the distance traveled. Means हम एक बस है जो रेस्ट से मूव होना शुरू हुई है, पहले वो रेस्ट में थी, अब उसने चलना शुरू किया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। कितना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। और कितनी देर तक, कितने टाइम के लिए? 2 मिनट्स के लिए। तो सबसे पहले हमें एक पार्ट निकालना है, दैट इज द स्पीड रिक्वायर्ड। सो स्पीड कितनी होगी उसके लिए पहले हम देख लेते हैं। क्योंकि हमारी बस रेस्ट से हुई है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, टाइम 2 मिनट्स गिवन है, मिनट को हम सेकंड में कर लेंगे क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है। मिनट्स में करने के लिए सेकंड्स में करने के लिए वी विल डिवाइड इट, मल्टीप्लाई इट विद 60 and we have got 120 seconds. Now we have to find the v. So we have the first equation of motion, that is v is equals to u plus at. To get the better understanding of all the equations of motion, you can watch my previous video. Now u की value 0 है, a की 0.1 and t is 120. After calculating, we got 12 meter per second. So the speed required is 12 meter per second. Now we will be doing the second part, that is we have to find the distance traveled. That is s. Now let's see. We will derive the distance from the second equation of motion, that is s is equals to ut plus half at square. So we will be putting the value 0, u की value है because it is at rest, t is 120, then half, then 0.1 for acceleration and 120 square. Now because this quantity is multiplying with 0, तो ये तो 0 ही होगी and आगे वाली को कैलकुलेट करके we get 720 and hence we get the distance traveled as 720 meters. Don't forget to write the units, they are very important. Okay, now let's do second question. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. एक हमारी ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसमें ब्रेक्स लगे हैं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। माइनस में एक्सेलरेशन कब होता है? जब वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होता है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले हमें ट्रेन का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। चलिए देखते हैं। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ट्रेन किस स्पीड से चल रही थी? 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को वी विल कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड। तो कैसे करेंगे? किलोमीटर को मीटर में करने के लिए वी विल टेक मल्टीप्लाई इट बाय 1000 एंड आवर को हमें सेकेंड्स में करना है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 times 60 and we have got 25 meter per second. Now we know acceleration is given as minus 0.5 meter per second square and we have to calculate distance. Also हमने फाइनल वेलोसिटी को 0 लिया है। क्यों? क्योंकि फाइनली ट्रेन में जो है ब्रेक हमने अप्लाई कर दिए थे, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ट्रेन हमारी रेस्ट पे आ गई है। तो ऐसे कैलकुलेट करने के लिए here we will use थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं? Because we have not given time and we have to calculate s, so this is the most appropriate equation we can use here. u को हम v की तरफ लेफ्ट में ले गए, so ये नेगेटिव हो गया। यहाँ से s के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इस 2a को हम इधर डिवाइड में लेके चले गए इस साइड। Now putting the values, v की वैल्यू हो गई हमारी 0, u is 25 into 25, now 2 का 2 हो गया and acceleration is in negative. After calculating, we get the value as 625 meter. So the train travels 625 meters before it is brought to rest.
Okay, clear? Now third question. A trolley, while going down an inclined plane, has an acceleration of 2 cm per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? एक ट्रॉली जो नीचे की तरफ जा रही थी हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें ये. उसकी हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर 3 सेकेंड्स. 3 सेकेंड्स उसके स्टार्ट होने के बाद. देखते हैं. हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि उसने रेस्ट से शुरू किया होगा. एक्सेलरेशन इज गिवन, टाइम इज 3 seconds एंड वी हैव टू कैलकुलेट v. देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से वी कैन इजीली कैलकुलेट. u is 0, a is 2 and time is 3. So we get velocity is equals to 6 centimeter per second. I think this is easy one. Now let's move on to the fourth numerical. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? एक रेसिंग कार है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट होने के बाद. देखते हैं. एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन. टाइम इज 10 सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी u is equals to 0. u is taken 0 because it must have started from the rest. Now we will use second equation of motion here. S is equals to ut plus half at square. Now putting the values 0 for u, t is 10, then half, a के लिए हमारे पास 4 हो गई and then 10 and 10 for time. And we get the answer 200 meters. So the racing car will cover 200 meters in 10 seconds after start. Now let's move on to our fifth numerical. A stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? What does that mean? एक स्टोन को हमने ऊपर की तरफ फेंका, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी. उसका एक्सेलरेशन जो है स्टोन का वो नीचे की डायरेक्शन में था. कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था. हमें बताना है स्टोन ने कितनी हाइट अटेन करी, मतलब एक तरह से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना टाइम लिया है स्टोन ने ऊपर तक जाने में. लेट्स सॉल्व इट. नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज 5 meter per second given and acceleration is 10 meter per second square. But why is this negative sign here? नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है और जब ये एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव. ऑल्सो फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. वाई? हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्टोन रुका होगा, वहां पे ये रेस्ट में आ गया, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 0. Now first we have to find the height attained, that is equal to distance. उसको distance भी बोल सकते हैं and distance is represented by s. Now suppose ये stone हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, यहाँ पे जाके रुकेगा, इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई. ऑल्सो ये किस वेलोसिटी से ऊपर गया था? 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऊपर तक जाने का डिस्टेंस, दैट इज s एंड टाइम t. अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन से वी विल फाइंड द डिस्टेंस फर्स्ट. वी नो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s. s को बेसिकली हम यहाँ पर लेकर चले गए एंड 2a नीचे आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के. एंड पुटिंग द वैल्यूज, v is 0, u is 25, 2 and acceleration is taken in negative, that is minus 10. After calculating we get the distance as 1.25 meter. तो उसको इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा? It's just 1.25 meters. Now we will be calculating the time.
टाइम के लिए वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, और हमें टाइम निकालना है इसलिए पहले u को हम इधर ले गए, v माइनस u हो गया एंड देन a को हम नीचे ले गए, सो वी गेट द टाइम। v की वैल्यू 0 है, u is 5 and a is minus 10. After calculating we get the time equals to 0.5 seconds. ऊपर तक जाने में स्टोन ने 0.5 seconds का टाइम लिया। Okay, that's it for today.